Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. Hi friends, welcome to today's session. So today we are going to have the lecture on class 10th Information Technology code 402 under NSQ. So today's topic is how to use macros in spreadsheet. जी हाँ, आज तक हम लोगों ने स्प्रेडशीट के बारे में बहुत सारे यूसेज देखे, उसको यूज कैसे करना है देखा, जैसे कि हाउ टू लिंक द स्प्रेडशीट, हाउ टू रिव्यू द स्प्रेडशीट डेटा, how to use the what if analysis in the spreadsheet, how to use the subtotals, how to consolidate the data in the spreadsheet, how to compare the spreadsheets. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि that is how to use the spreadsheet data for the connectivity, how to use the hyperlinks also. So in today's topic, we are going to study macros in a spreadsheet. Okay. So today's contents are that is introduction to macros, what is a macro, the advantages of macro, and we are going to say actual how to create macros using the macro record. Then next one, after creating, we are going to use that macro. So in this way, we are going to study the today's contents. So first of all, introduction. That why there is need to have the macros here. Okay, many times it is needed to perform similar task on the set of the different data. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग देते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्लास से वो स्टूडेंट्स एक क्लास से आगे की क्लास में जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, जनरली हम लोगों को उनके रिजल्ट कैलकुलेशंस होते हैं, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट्स विल बी देयर, द कैलकुलेशंस विल बी देयर, द स्टूडेंट्स रोल नंबर्स आर देयर. एक स्कूल होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सो ये कैलकुलेशंस हम क्या करने पड़ते हैं, हर साल बार बार परफॉर्म करते हैं. सो एट दैट टाइम we can use a special feature called as the macros, which are basically a recorded set of the actions here. So in this lecture we are going to study that is how to create and run the particular macros. हम लोग इसे कह सकते हैं कि that is to automate the repetitive tasks. We are having the Excel is going to provide you a special feature called as the macros. So this is some of the basic introduction about the मैक्रोज हियर. देखिए, एक ही चीज को आपको अगर बार बार करना है, एक ही फॉर्मूला आपको बार बार लगातार यूज करना है, तो एट दैट टाइम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द मैक्रोज देयर. देन नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द मैक्रो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो. सो आई कैन से दैट अ मैक्रो इज अ named, saved and recorded sequence of commands or keystrokes which can be resumed anytime by using the macro name और बाय प्लेइंग द कमांड सीक्वेंस अगेन. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक बार ही क्या करेंगे, वो कमांड्स और की स्ट्रोक्स जो है वो सेव करेंगे और हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बार बार हम लोग जितने भी एक्सेल यूज कर रहे हो तो उस एक्सेल में हम लोग ये सारी चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं बाय रिज्यूमिंग द एनी टाइम बाय यूजिंग द मैक्रो नेम्स. देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, द माइक्रोज आर वेरी यूजफुल फॉर द सिचुएशंस वेयर द टास्क आर गोइंग टू बी रिपीटेड. जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्टूडेंट्स का अगर हम लोगों को रिजल्ट कैलकुलेशन करना है, हर साल हमको स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, उनका रिजल्ट जो कैलकुलेट करना पड़ता है. देयर आर सम मार्क्स, नेमिंग फॉर्मेट्स आर देयर, देन देयर आर सम मार्क्स कैलकुलेशंस आर देयर. सो ये सारी चीजें हमको बार बार करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, दैट मैक्रोज वी कैन यूज एट दैट टाइम. नाउ जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा कि स्टूडेंट्स के लिए, वैसे अभी पर्टिकुलर एक कंपनी होती है, वहां पर बिलिंग होती है, तो बिलिंग के फॉर्मेट्स भी होते हैं. सो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मैक्रोज जो है वो यूज कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय द मैक्रोज एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ए मैक्रो.
Then we will see what are the advantages of using a macro. Macro use करने के advantages क्या है? So there are so many advantages. We are going to see some of the macros advantages. So first of all, macro जो है वो क्या करता है? Macro is going to automate the repetitive keystrokes and tasks. Yes, most of the time macro की जो functions होते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, वो automation provide कर सकते हैं आपके एक्सेल को. जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर टास्क रिपीट हो रही है तो वो टास्क जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, एक सेव्ड रहेगी और हमको जब चाहिए तब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. Then the next advantage is that macro is going to reduce the possibility of human error, and this is going to increase what, many repetitive keystrokes and tasks. So हमारे पर्टिकुलरली क्या होता है, अगर कोई हम फॉर्मूला सपोज 10 स्टूडेंट्स के लिए वो फॉर्मूला यूज किया, सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स से तो एरर्स होते ही रहते हैं. तो फिर अगर वही फॉर्मूला हम लोग 50 स्टूडेंट्स को अप्लाई करने जाएंगे बाय मैन्युअली, मेनी टाइम्स इट इज पॉसिबल दैट कि बहुत सारे एरर आ सकते हैं. जैसे कि हम लोगों ने देखा प्रैक्टिकल्स जब हम लोग कर रहे थे, लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा वगैरह, बहुत सारे एरर्स आ रहे थे. सो वी हैव टू रिमूव दीज एरर्स. सो इससे क्या होता है, टाइम जो है बहुत जाता है. सो वी कैन से दैट इट इज गोइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक एंड रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टास्क्स. So that is what we can say, that the macros are going to make these things faster. इससे क्या होता है, थिंग्स जो है तो फास्टर रन हो सकती है, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम जो है बेसिक यूज करने में उसको बच जाता है. Then next one is we can say that the macros are useful for making complex computations easier. एक बार आप लोगों ने complex computations पूरे find out कर लो, उसको लिख लो, and to perform by sorting them in a name. और उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिपीटेडली यूज कर सकते हैं. दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग मैक्रोस हियर. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज हाउ टू क्रिएट एंड रन द मैक्रोस हियर. Okay, so for that we are going to have our Microsoft Office Excel sheets, and we are going to perform some operations on that. Okay, सो अभी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वी आर गोइंग टू ओपन दी एक्सेल. ओके, अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, एक ब्लैंक वर्कबुक जो है वो ले लिया है. ओके, नाउ सपोज आई एम गोइंग टू हैव रोल नंबर, देन देयर वाज सब्जेक्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस. अभी मैंने रोल नंबर ले लिए 1, 2, 3 and 4 here. Then the subjects 78, तो मैंने उसके मार्क्स जो है वो ले लिए हैं 86. Now I'm going to take 90, suppose 92, 93 and 90. अब इसके साथ ही मैंने साइंस के लिए मार्क्स ले लिए 97, 95, 96. अभी देखिए, इसको मैंने कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं की हुई है, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये जो फॉर्मेटिंग है मुझे बार बार लगातार सेम फॉर्मेटिंग यूज करनी है, सो दैट आई कैन सेव मेथड ईच टाइम. यू हैव सीन, हम लोगों ने अब तक देखा, हम लोगों ने लिंकिंग करते वक्त जो प्रॉब्लम होता था, हमेशा मुझे क्या करना पड़ता था, यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी पड़ती थी. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ही फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम लोग बार बार यूज करेंगे. ठीक है, तो फिर देखिए अभी हमको कहाँ जाना है, इन द रिव्यू then view section. देखिए, you can see here the option macros. Okay, click to view, record और pause the macros. ठीक है, देखिए मैक्रो जो है वो क्या करता है जनरली, अभी व्यू मैक्रोस में देखिए मेरे पास कोई भी मैक्रो अवेलेबल नहीं है, अभी हमको रिकॉर्ड करना है. सो मैक्रोस की कंसेप्ट समझ लीजिए. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बचपन में एक टेप रिकॉर्डर होता था. उस टेप रिकॉर्डर में हम जो रिकॉर्ड करते थे उसको हम बार बार प्ले कर सकते थे. तो वैसे ही यहाँ पर मैक्रोस जो है वो क्या करता है, आपकी हर जो मूवमेंट है, आपकी हर जो टास्क जो है वो रिकॉर्ड करके देता है. सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग जो करेक्शंस करोगे वो भी रिकॉर्ड करके लेगा. दैट इज सपोज यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम करेक्ट फॉर्मूलाज, तो वो भी आपको मैक्रो रिकॉर्ड करके देगा. अगर आप लोग कुछ गलती करोगे तो वो भी मैक्रो रिकॉर्ड करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू जज और आइडेंटिफाई वेदर यू आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क करेक्टली और रॉन्गली.
So whenever you are going to record a macro, try to understand that it is going to store as it is operation which we are going to perform. जो कुछ भी ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो मैक्रो जो है वो क्या करता है, एज इट इज करेक्शन के बिना रिकॉर्ड करके रहता है. तो आप लोग चाहे वो सही कर रहे हो रिकॉर्डिंग या फिर गलत कर रहे हो, यानी कि जो भी आप लोग रिकॉर्डिंग के बारे में करोगे वो मैक्रो जो है कैप्चर करके लेगा. अभी देखिए यहाँ पर मैक्रोज में हम लोग जाएंगे. यहाँ पर देखिए व्यू मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रोज, ये दोनों ऑप्शन से, ये दोनों ऑप्शन पर आज हम परफॉर्म करेंगे. देखिए यहाँ पर कोई भी मैक्रो नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मैक्रो को क्रिएट करेंगे. सो क्रिएट कैसे करना है, देखिए रिकॉर्ड मैक्रो हम लोग करेंगे तो एक्चुअल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी हमारे मैक्रो की. सो देर किस बात के, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, रिकॉर्ड अ मैक्रो, ईच ऑफ द कमांड्स यू परफॉर्म will be saved into the macro so that you can play them back again. देखिए अभी मैं क्या करूंगी, फिलहाल मुझको यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो करूंगी. ठीक है, मैक्रो नेम का मैं नाम दे दूंगी फॉर्मेटिंग. जितना अच्छा आप मैक्रो का नाम दोगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा कि आपने मैक्रोज किस पर्पस के लिए. अभी डिस्क्रिप्शन, this macro is going to format the cells. मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया. अब मैक्रोस देखिए कहाँ पर, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक और दिस वर्कबुक. सो मैं बाय डिफॉल्ट इसका दिस वर्कबुक लिखता हूँ. अभी देखिए फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स यहाँ पर लिख दूंगी. अभी देखिए ये रन होता है या नहीं. देखिए द सिंटैक्स ऑफ दिस नेम इजंट करेक्ट. मैक्रो जो है वो एक्चुअली क्या करता है, एक फंक्शन की तरह का यूज करते हैं. सो हमको क्या करना है, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर स्पेस जो है मैक्रो के नेम में ऐड नहीं करना है, तभी आपका मैक्रो जो है वो क्या होगा, रन होगा. एंड यस ऑब्वियसली डजंट कॉन्फ्लिक्ट विद एन एग्जिस्टिंग नेम इन दी वर्कबुक. कोई पहला ही नेम है आपके मैक्रो का तो फिर उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है. देन एंड देन ओनली योर मैक्रो विल रन देयर. ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका नेमिंग जो है वो ठीक से देते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स. ओके, अभी ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है, रिकॉर्ड अ मैक्रो, ईच ऑफ द कमांड्स यू परफॉर्म विल बी सेव्ड इनटू द मैक्रो सो दैट यू कैन प्ले देम बैक अगेन. अभी मैं क्या कर देती हूँ, इसको फॉर्मेटिंग करके दे देती हूँ. देखिए अभी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो पूरा का पूरा मैक्रो जो है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करके दे देगा. सो आई विल कीप इट एज, अभी उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डाल देंगे और रोल नंबर्स जो है उसको क्या करते हैं, ठीक है. अभी उसका फॉन्ट जो है वो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ. ओके, रोल नंबर हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस. उसका फॉन्ट जो है वो भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं. देन कौन सा लूँ अभी, ठीक है देखते हैं. ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन ले लिया. इसको क्या कर देते हैं हम, अभी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं. ठीक है, ये जो है पूरी मैंने क्या कर दी, फॉर्मेटिंग करके दी. अभी हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो की रिकॉर्डिंग हो गई है. ठीक है, अभी फॉर्मेटिंग मैक्रो के लिए इतना ही काफी है मेरे लिए. अभी मैं क्या करूंगी, फिर से व्यू में जाऊंगी एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग बोल दूंगी. अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्या होगा, वो मैक्रो जो है वो सेव हो जाएगा. अभी मैक्रो को सेव करने के लिए देखिए मुझे क्या करना है, फाइल सेव डायरेक्टली नहीं करना है हमें, फाइल सेव एज. मैं एक बार फिर से आपको रिपीटेडली बता देती हूँ, उसको क्या करना है, फाइल सेव एज कहाँ पर करना है, डॉक्यूमेंट्स में मैं सेव कर देती हूँ. और यहाँ पर देखिए फाइल नेम हम लोगों को क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स. ठीक है, ये फाइल नेम मैंने दे दिया. अभी यहाँ पर मैक्रो लिखती हूँ, काम कर देते हैं, मैक्रो फॉर सेल्स फॉर्मेटिंग. और सेव एज टाइप देखिए यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक हमको लोगों को नहीं लेना है, हमको क्या करना है,
एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। ये देखिए फिर से एक बार मैं ऑप्शन दिखा दूँ, यू हैव टू सेलेक्ट द फाइल नेम एज पर योर कन्वीनियंस, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सेव एज टाइप जो है वहां पर क्या रहेगा, एक्सेल वर्कबुक की जगह एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक जो है वो हम लोग सेव करके लेते हैं। अभी आफ्टर सेविंग वी हैव टू जस्ट चेक वेदर आवर मैक्रो इज अवेलेबल और नॉट। अभी देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं कि मैक्रो जो है यहाँ पर डॉट एक्सेल एस एम है, और जो हमारी पुरानी जो एक्सेल शीट थी डॉट एक्सेल एस एक्स में है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सटेंशन है वो जो है चेंज होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, मैक्रो का नेम जो है वो एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड किया हुआ है, वर्कशीट है और वर्कबुक जो कुछ हम कह सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेटिंग है इसका एक मैक्रो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। मैं अब क्या करूंगी, एक नया वर्कबुक लूंगी। आई विल टेक वन एक्सेल शीट अगेन। ओके, आई विल टेक ब्लैंक वर्कबुक। ओके, एक से ज्यादा ओपन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बाकी का क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी मैं फिर से यहाँ पर क्या कर लूंगी, एक रोल नंबर, then marks of Hindi, English and science। रोल नंबर डालती हूँ 1 2 3 4। अभी कुछ हम मार्क्स लिख लेंगे यहाँ पर 89 90 78 86। ओ सॉरी, यहाँ पर हम लोग लेते हैं 74, then 76 90 95 98 and 92। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली आई हैव टू गो इनटू माय व्यू टैब। व्यू टैब में मैं फिर से जाऊंगी एंड मैक्रोस पे क्लिक करके व्यू मैक्रोस करूंगी। देखिए यहाँ पर व्यू मैक्रोस जो है वो ओपन है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कहाँ पर जाना है मुझे, होम टैब से मैं व्यू टैब पे जाऊंगी, वहां पर मैक्रोस जो है व्यू मैक्रोस यहाँ पर ये ओपन है। देखिए मैक्रोस इन ऑल ओपन वर्कबुक और दिस वर्कबुक और मैक्रोस फॉर सेल्फ फॉर्मेटिंग। यहाँ पर देखिए जितनी ओपन मैक्रो वर्कबुक है वो हमको दिख जाएंगे। अभी मैं क्या कर देती हूँ, फिर ये मैक्रो जो है वो क्लोज कर देती हूँ। अभी हम लोग देखते हैं मैक्रोस, व्यू मैक्रोस। देखिए यहाँ पर मैक्रो जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो इनटू द पर्टिकुलर लोकेशन एंड देन आई हैव टू ओपन माय मैक्रो। देखिए मैक्रो फॉर सेल्फ फॉर्मेटिंग, if you can see here it is what Microsoft Excel macro enabled worksheet, so I will open it। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, ये ऑप्शन है। अभी मैं क्या करती हूँ, मैक्रोज व्यू मैक्रोज में जाऊंगी एंड आई विल ट्राई टू रन इट। देखिए बिकॉज ऑफ योर सिक्योरिटी सेटिंग्स मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। टू रन मैक्रोज यू नीड टू reopen this workbook and then choose to enable macros। For more information about enabling macros click है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ है, हमारे मैक्रोस तो ओपन हुए हैं बट वो क्या हुआ है, हमको क्लोज करके फिर से इनेबल करने पड़ेंगे बिकॉज ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज इसको कंटेंट्स जो है वो एनेबल नहीं की हुई। ओके, सो मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, सिक्योरिटी वार्निंग, सो आई एम गोइंग टू एनेबल माय कंटेंट्स। सो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, आई विल क्लिक समवेयर व्यू मैक्रोस। देखिए यहाँ पर फिर से मैक्रोस जो है वो आ गए हैं एंड आई विल रन। देखिए विदाउट सेलेक्टिंग एनीथिंग मेरा क्या हो गया, मैक्रोस जो है डायरेक्टली रन हो गए बाय यूजिंग इन दी फ्यू सेकंड। देखिए इसके लिए मुझे क्या आ जाता था, 1 से 2 मिनट मुझको सारी फॉर्मेटिंग को जा सकते थे, बट बाय यूजिंग द मैक्रोस उसमें क्या हो गया, विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे जो फॉर्मेटिंग है वो इजिली एप्लीकेबल हो गई। अभी मैं क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पर अंडो नहीं होता है क्योंकि एक फंक्शन होता है, वो रन होने के बाद क्या होता है, आपका डेटा जो है वो रह जाता है बेसिक वैसे। सो अभी मैं क्या करती हूँ, एक नया शीट लेती हूँ और वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोस जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। इंग्लिश एंड साइंस, रोल नंबर 1 2 3 4, अभी मैं 5 ले लेती हूँ। यहाँ
यहाँ पर 78, 86, कुछ तो मैंने रैंडमली डेटा ले लिया, 92, 96, 94, 95, 96, 92, 80, 89, 85, 84, 88 and 80। अभी हम फिर से कहाँ जाएंगे, मैक्रोज, व्यू मैक्रोज में जाएंगे और फिर से उसको रन करेंगे। देखिए आप लोगों ने रन करने के बाद एक चीज जो ऑब्जर्व की होगी, हमारा मैक्रो जो है ओरिजिनल, यहाँ पर कितने सेल्स पर फॉर्मेटिंग की हुई है, एक्चुअली इसने 1 2 3 4 एंड 5 रोज पर यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की हुई है। अभी देखिए यहाँ पर कितने रोज पर फॉर्मेटिंग हो रही है, सिर्फ 1 2 3 4 5, और ये जो 6 रो है वो फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मैक्रो को फिर से हम लोग रन करके देखते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, मैक्रोज जितने रोज और कॉलम्स आप लोग सेलेक्ट करोगे उस पर ही ये फॉर्मेटिंग करेगा। अगर समझो हम लोगों ने ऐसा कर दिया कुछ, रोल नंबर, इंग्लिश एंड साइंस, 1 2 3 4 5 6, के मार्क्स 89, 85, 82, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 90, 99, okay, 98, 95, 92, 90, 78, 89। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे सेल्स जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और मैक्रोस को उसको फिर से अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी क्या कर दिया उसने, ऊपर की जो लाइन है उसको भी सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि ये फोर्थ जो रो है, यहाँ पर भी फोर्थ वाली रो है और यहाँ पर भी कौन सी है, फोर्थ रो है, एंड कॉलम इज सेकंड, दैट इज बी कॉलम इज देयर। अभी मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर फोर्थ रो में कुछ नहीं डाला था, मैंने डायरेक्टली कौन से फिफ्थ रो से डाला, तो उसने फॉर्मेटिंग कहाँ से चालू कर दी, फोर्थ रो से ही चालू कर दिया। बी में यहाँ पर कुछ लिखती, देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रोल नंबर आ गया, हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस। देखिए यानी कि ये क्या हुआ, दिस इज दी वन ऑफ, आई कैन से दैट वन सॉर्ट ऑफ द लिमिटेशन फॉर द मैक्रोज। अभी हम लोग क्या करते हैं, बाकियों को फॉर्मेट पे एंटर करके उसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, एंड आई विल डिलीट दिस रो। यानी कि आप जो रो जो कॉलम पर एक्चुअल मैक्रोज लिखोगे तो वही रो एंड वही कॉलम पर उसकी क्या होगी, फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। दिस इज आई कैन से दैट द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट जब भी आप लोग मैक्रोज जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, बी वेरी केयरफुल विद यूजिंग द मैक्रोज देयर। मैक्रोज यूज करते वक्त आपको बहुत ध्यान से उसको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके मैक्रोज जो है वो थोड़े से उसके फॉर्मेटिंग बिगड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सिंपल फॉर्मेटिंग का देख लिया, पर अभी हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले दैट इज हाउ टू एक्चुअली अप्लाई फॉर्मूलाज ऑन द मैक्रोज। तो फिर तब हम लोग जब देखेंगे दैट इज हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला, तो फिर वहां पर आप लोगों को बहुत ही केयरफुली, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूलाज फॉर दैट। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कैसे यूज करना है। सो व्हाट आई विल डू, I will close both these. Okay, I will not save it. I will close this also. And what I will do, I will open new Excel. Roll number, Hindi, English. Okay, fourth row, fourth column है. No, fourth row, second column. Sorry. अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स के लिए लिया हम लोगों ने। इंग्लिश एंड कौन सा रह गया है यहाँ पर, साइंस जो है वो रह गया, नो प्रॉब्लम। आई विल राइट द मार्क्स हियर, 92, ठीक है, यहाँ पर भी मार्क्स लिख देते हैं, 80, 82, 83 एंड 89 मार्क्स लिए, 97, 98, 92, 93। अभी मुझे क्या करना है, मैक्रोज में मुझे यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट द टोटल, इसके लिए मुझे मैक्रो लिखना है, दैट इज व्यू
में अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे मैक्रोज में। अभी व्यू मैक्रोज में हमारा कोई मैक्रो यहाँ पर ओपन नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड करके लेंगे। ओके, आई विल रिकॉर्ड द मैक्रो। अभी मेरा नेम ऑफ द मैक्रो होगा टोटल कैलकुलेशंस। ओके, दैट्स इट। दिस मैक्रो के डिस्क्रिप्शन लिखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैक्रो किसके लिए। दिस मैक्रो is going to be used for calculating the total of all the subjects and I will press OK। ओके, देखिए यहाँ पर फिर से एरर क्या हो गया, हम लोग क्या कर, यहाँ पर स्पेस या फिर अंडरस्कोर हमको यहाँ पर यूज करना है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर मैक्रोज हैज बीन स्टार्टेड टू रिकॉर्ड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगी, टोटल जो है वो कैलकुलेट करूंगी। ओके, टोटल के लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू सम, कहाँ से, ये वाले रो, ये वाले कॉलम C5 से लेकर हमको कहाँ तक लेना है, C9 तक, राइट, C9। ओके, पूरे की पूरा सेलेक्ट हो गई। ओके, सॉरी कुछ तो एरर आ गया, C5 से C8 तक है। ओके, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने ऑटो सम किया था, पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करके लेते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू सम ऑफ D5 टू D9, नो D9 D8, फिर से मैंने वो गलती करने जा रही थी, नो प्रॉब्लम। अभी एक और तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम ऑफ, इसको ड्रैग कर लीजिए एंड एंटर। ठीक है, ये हमारा मैक्रो हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी हम अच्छे से कर लेते हैं। सो आई विल गो टू द होम, देन ऑल बॉर्डर्स, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसका फॉन्ट जो है वो हम लोगों ने शायद कौन सा रखा था, वही कॉमन रखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन, एंड आई थिंक इट वाज 14। अभी टोटल को जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अलग से कर देते हैं। टोटल, उसको बोल्ड कर दिया, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोगों ने चेंज कर दिया। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल व्यू एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, फाइल सेव एज, डॉक्यूमेंट्स में मैं सेव करेंगे इसको। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, सेव एज टाइप कौन सा लेना है, यहाँ पर इफ यू रिमेम्बर एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्क ले लीजिए। और ये हमारा मैक्रो किसके लिए है, मैक्रो फॉर टोटल कैलकुलेशन। एंड हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, व्यू मैक्रोज में अगर हम लोग जाएंगे तो यू कैन सी हियर हाउ टू यूज द मैक्रोज हियर। देखिए, अभी मैंने क्या कर दिया, स्टेप इनटू द मैक्रोज। ये मैक्रोज की जो कोडिंग है बैकग्राउंड में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस में रिकॉर्ड हो जाती है। देखिए, अभी हम अब तक हम लोगों ने जब से मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और जब हम लोगों ने एंड कर दिया, तब तक की पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर सेव हो जाती है। देखिए, द नेम ऑफ द मैक्रो इज व्हाट, टोटल कैलकुलेशन। देखिए, उसने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, दिस इज व्हाट आई कैन से दैट द पर्टिकुलर स्मॉल सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट इज व्हाट, टोटल कैलकुलेशन। मैक्रो का नाम क्या हुआ यहाँ पर, टोटल कैलकुलेशन मैक्रो, राइट। नाउ दिस मैक्रो इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिखा था, तो यहाँ पर कमेंट्स से इंटर हो गया है। देखिए, विजुअल बेसिक का ये कोड है, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट कमेंट जो यहाँ पर यूजिंग टिक करते हैं। अबे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है वो क्या हुआ है, हमारा मैक्रोज जो है वो एक्चुअली रिकॉर्ड हो रहा है।
देखिए पहले मैंने क्या कर दिया, वहां पर टोटल लिख लिया, उसके बाद मैंने सम कर लिया। इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दी थी गलती, देखिए C9 का रेंज सेलेक्ट कर दिया था हम लोगों ने पहले, C4 to C9 आई थिंक, तो उसने क्या कर दिया, उसको भी ग्रैब कर दिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट द मैक्रोस, छोटी सी छोटी गलती भी क्या हो सकती है यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकती है। देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने उसको बॉर्डर्स लगा दिए, डायरेक्ट सिलेक्शन नॉट बॉर्डर्स, यहाँ पर बॉर्डर्स लगा दिए है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया है, देखिए आफ्टर अप्लाइंग द बॉर्डर्स तो 1 by 1 सेल्स, देखिए यहाँ पर सारी की सारी बॉर्डर्स जो है हम लोगों ने अप्लाई कर ली है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर विथ सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने उसका फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर दिया है, साइज जो है उसकी थोड़ी सी बढ़ा दी है, जो बाय डिफॉल्ट थी वो रह गई है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर स्ट्राइक टू सबस्क्रिप्ट देन सुपरस्क्रिप्ट जो क्या है फॉन्ट स्टाइल से, वो हम लोगों ने कुछ अप्लाई नहीं किया यहाँ पर, तो इसको क्या हो गया, सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर फॉल्स सेव हो चुकी है। अभी उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, हम लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, उसके साथ ही हम लोगों ने क्या कर दिया, उसका साइज जो है वो 14 कर दिया, ठीक है। अभी हम लोगों को कोडिंग करनी है, तो हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, टोटल को जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, B9 के टोटल को बोल्ड कर दिया, उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दिया, और थीम कलर भी है जो वो चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों को चेंजेस करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, एंड वी कैन सेव आल्सो, ओके, एंड वी कैन रन इट। ओके, रन करने के लिए फिलहाल हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है फिलहाल, दैट्स व्हाई द टोटल इज जस्ट गोइंग टू बी प्रिंट लाइक दैट। फिर से आपको अगर कोड में जाना है तो कहाँ पर करेंगे, व्यू मैक्रोज एंड स्टेप इनटू। अगर एडिट करना है तो हम लोग यहाँ पर जाकर एडिट भी कर सकते हैं, जिसकी अभी हम लोगों ने यहाँ पर एडिट कर दिया था। यू कैन सी हियर दैट दिस साइज हम लोगों ने क्या कर दी, 14 की 16 कर दी है। देन उसको डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं उसके, और ऑप्शंस में हम लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ चेंज करना है, उसको शॉर्टकट की लगाना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं कुछ चेंजेस इसमें नहीं कर रही हूँ। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये सिंपली टोटल का जो है हम लोग क्या करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व हियर देखिए ये क्या हो गया है 16, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या कर दिया था, बाय यूजिंग द कोड हम लोगों ने इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। अब मैं फिर से क्या करूंगी, न्यू एक्सेल शीट लूंगी, ओके, ब्लैंक वर्कबुक, देखिए कौन सा है यहाँ पर, 4th रो है, राइट, रोल नंबर, देन हिंदी, इंग्लिश, नेक्स्ट वन इज साइंस, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से हम मार्क्स लिखते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाती है इससे। 91, 98, 96, 76, 93, अभी साइंस के लिख दे मैं 90, 91, 95 एंड 93, ओके हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैक्रो जो है वो अपनी ओपन होनी चाहिए, एज आई हैव सेड बिफोर, वो ओपन है। देन व्यू में हम लोग जाएंगे मैक्रोज, व्यू मैक्रोज, देखिए यहाँ पर एक ही मैक्रो दिखती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, वो पुरानी वाली जो मैक्रो है वो भी उसको ओपन कर देते हैं। आई विल गो टू दी डॉक्यूमेंट्स, मैक्रोज फॉर सेल फॉर्मेटिंग, ठीक है, दोनों मैक्रोज जो है हम लोगों ने ओपन करके, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, मैक्रोज नॉट रिकॉर्डिंग, अभी मुझे क्या करना है, उसको यूज करना है। अभी मैं पहले क्या करती हूँ, फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स, देखिए फॉर्मेटिंग हो गई। अभी उसके बाद मेरी दूसरी मैक्रोज के कौन सी है, टोटल की, ओके। सो आई विल क्लिक ऑन द टोटल एंड देखिए यहाँ पर टोटल की जो मैक्रो है वहां पर रन हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया यहाँ पर, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं उसको टिक कर लेते हैं। ये कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने के बाद होता है ऐसा, ठीक है। यस, मैंने क्या कहा था यहाँ पर, वहां पर ही सिलेक्शन करके लिखा था, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू शो देयर। अभी एक बार क्या करते हैं, हम टोटल को फिर से अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर,
मैक्रोज व्यू मैक्रोज एंड कैलकुलेटिंग टोटल्स। देखिए टोटल जो है यहाँ पर रन हो चुकी है। सो इन दिस वे वी कैन इजीली यूज द डिफरेंट मैक्रोज। एक मैक्रो हम लोगों ने यूज की फॉर सेल फॉर्मेटिंग के लिए और दूसरी मैक्रो जो थी हम लोगों ने यूज की फॉर कैलकुलेटिंग द totals. So in this way we can have the formatting of the macros, that is formatting of the cells, and then next what we can do, we can have the calculations by using the macros here. अभी देखिए फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्रोज में क्या करते हैं हम लोग, ये जो दो मैक्रोज है वे क्लोज करके देते हैं। ओके हम लोगों ने इसमें कुछ सेव चेंजेस किए थे, हम लोग सेव कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, नाउ इफ यू सी यहाँ पर व्यू मैक्रो में जाओगे तो यहाँ पर कोई भी मैक्रो जो है वो रन नहीं होगी। ओके अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं कुछ रन होता है क्या नहीं। तो इसके लिए क्या है हमारे पास कंपलसरी, द मैक्रोज शुड बी ओपन हियर। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोज फॉर सेल फॉर्मेटिंग ओपन करते हैं और वो मैक्रोज जो है वो व्यू मैक्रोज में जाकर फॉर्मेटिंग ऑफ सेल जो है वो हम लोग इजिली देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर रोल नंबर हियर। ठीक है, अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए डिफरेंट मैक्रो ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सारे मैक्रोज यानी कि अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें टोटल कैलकुलेशन करना है और एवरेजेस भी निकालने हैं, तो उसको कंबाइन भी हम लोग कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द मैक्रोज। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, न्यू एक्सेल शीट ले लेती हूँ। blank workbook is there. Okay, fourth year we continue करते हैं, रोल नंबर हिंदी इंग्लिश साइंस 1 2 3 and 4. I will write the marks as 78 89 96 92 and 90। हो गया। यहाँ पर भी हम लोग इंग्लिश के मार्क्स ले लेते हैं, 92 93 91 92 92 93 91। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर रोल नंबर 1 के जो टोटल और एवरेज है वो कैलकुलेट करेंगे। एवरेज एवरेज से अच्छा इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज जो है वो उसका कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए कितने मार्क्स हैं, आई विल कैलकुलेट इट एज इज इक्वल्स टू, हम लोगों को फॉर्मूला लेना है सम ऑफ, ठीक है हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं लिया इसलिए वो एरर आ चुका है, सम देन और डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट है इसलिए आउट ऑफ 100 मार्क्स है तो आउट ऑफ 100 के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ओके 88.33। सॉरी हम लोगों ने यहाँ पर एक काम किया है, हमने मैक्रोज जो है यहाँ पर एनेबल नहीं किए थे। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोज जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, दिस वर्कबुक this macro will calculate the percentage of students, I can say 1 by 1, and okay so my macro has been started to record। so percentage is there is equals to हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ, ठीक है और मैंने क्या बोला था अभी, डिवाइडेड बाय 3। देन नेक्स्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ, हम लोग ऑटो सम भी कर सकते हैं, वैसे ही क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने ऑटो सम किया था। बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लेते हैं, सम ऑफ डिवाइडेड बाय 3, sum of all these cells divided by। देखिए यहाँ पर जो है अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो चेंज करके देते हैं। फिलहाल के लिए आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ।
अभी मैं 95 लिख देती हूँ। यस, परसेंटेज भी यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 84 चेंज हो गए। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर एक काम कर देते हैं, इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, फाइल सेव एज कर डॉक्यूमेंट्स में सेव करेंगे और मैक्रो फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन एंड एक्सेल वर्कबुक जो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्क एंड आई विल सेव इट। नाउ आई विल डू वन मोर थिंग। अभी इसी में हम लोग एक और मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अभी इस मैक्रो का हम लोग नेम क्या देंगे, फॉर्मेटिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना भूल गए। फॉर्मेटिंग दी परसेंटेज कॉलम। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ओके, इसका बैकग्राउंड जो था थोड़ा सा बोल्ड, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा 40, राइट। इसको ऑल बॉर्डर्स में नहीं कर दिया। सेम वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी जो है फॉन्ट क्या है 14 करते हैं। ओके, और एक काम कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसका ओके हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, बट दिट इज नॉट दैट मच विजिबल। ओके, इंडेंटेशन जो है इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। इतना ही हमको चाहिए, इसलिए मैंने इतनी के फॉर्मेट कर दिया, क्योंकि बाकी के फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी मैक्रो अवेलेबल है। एंड हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। एंड लास्टली हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोज स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे शीट्स हो गए हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक नया एक्सेल फॉर्मेट ले लेते हैं और वहां पर that is it was 4th, right? Roll number, Hindi, English and Science, 1 2 3 4, कुछ मार्क्स में 86 95 94 92 90 92 93 97 मार्क्स ले लिया। अभी 94 90 93 99 व्हाटएवर। अभी हम लोग क्या करेंगे, व्यू एंड मैक्रोस। व्यू मैक्रोस में जाएंगे, देखिए परसेंटेज है एंड फॉर्मेटिंग ऑफ से एंड परसेंटेज कैलकुलेशन। ओके, सो आई विल रन दिस। देखिए यहाँ पर हमारे क्या हो गए, परसेंटेज जो है वो रन हो चुके हैं, राइट। ठीक है, अभी हमको परसेंटेज कैलकुलेशन करके मिल गए हैं। अभी नेक्स्ट टास्क व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फॉर्मेटिंग। देखते हैं ये कौन सा वाला फॉर्मेटिंग है। हाँ, परसेंटेज कैलकुलेशन के अंदर ही एक और हम लोगों ने मैक्रो लिखा था जो कि परसेंटेज फॉर्मेटिंग के लिए था, राइट। सो देखते हैं वो रन होता है या नहीं। इफ इट इज नॉट रनिंग देन नो प्रॉब्लम। ओके, कुछ तो इसको एरर आ गया है, पहले वो एरर हम लोग चेक करके लेते हैं। मैक्रो फॉर सेल फॉर्मेटिंग। ओके, ये बुक टू आई विल क्लोज दिस, डोंट सेव हियर। मैक्रोस, व्यू मैक्रोस में कौन सा हुआ, फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स। ओके, ये सेव एज कहीं पर नहीं रन हुआ है। ओके, ये फॉर्मेटिंग जो है परसेंटेज कैलकुलेशन में जो है वो सेव एज कहीं पर नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको सेव करके लेते हैं पहले। ओके, देन आई विल व्यू मैक्रो, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी इसको जो है हमको इसकी फॉर्मेटिंग जो है हम लोग हटा देते हैं फिलहाल के लिए, so that you will have the better idea about it. ओके, इसके इंडेंटेशन जैसे थे वैसे रहने देते हैं, इतने थे मेरे हिसाब से। और इसके बॉर्डर्स जो है वो भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग कर लेंगे ये पूरा।
अभी व्यू, देन मैक्रोस, हम लोग फिर से रिकॉर्ड मैक्रो कर देते हैं, परसेंटेज formatting. Okay, this macro will format the percentage column. ओके, इस पर बुक लिख देती हूँ। ओके, फिर से मैंने गड़बड़ कर दी। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, ओके मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग फिर से इसको सेलेक्ट कर देते हैं। आई विल गो टू दी होम, सॉरी पूरे के पूरे कॉलम्स हमको नहीं सेलेक्ट करने थे क्योंकि हम लोगों ने गलती से परसेंटेज भी सेलेक्ट कर दिया था। ओके, अभी इसका हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे, बोल्ड एंड 40। ओके, ये पूरा का पूरा जो है हम लोग क्या करना है, इसका ऑल बॉर्डर्स करते हैं। अभी हम लोग फाइल सेव एज, ओके मैक्रो फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन में, ओके ऐसे हम लोग कर देते हैं। सेव कर दिया इसको। अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये हमारा बुक 4 था। अभी यहाँ पर हमको मैक्रो जो है वो व्यू करने हैं। ओके, मैक्रोस फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन 1 एंड ट्राई टू रन। ओके, यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा एरर जो है वहां पर आ चुका है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, सिलेक्शन ठीक से नहीं किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है कैलकुलेशन ठीक से करवाते हैं। नहीं, ओके इसका टोटल जो है हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पर से हम लोगों ने इसको कट करके ले लिया। ओके 92, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैक्रोस में, व्यू मैक्रोस में हम लोगों ने क्या कर दिया, परसेंटेज फॉर्मेटिंग और रन करें। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर आ चुका है, देखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। दैट इज माय बुक ट्रायल macros, view macros, percentage formatting. Okay, I will try to run it. Okay, it is running absolutely. just हमसे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बहुत बहुत से मैक्रो जो है वहां पर ओपन है, तो जस्ट आई विल क्लोज दिस ऑल। ओके, सो अगर आपको क्या करना है, एक ही फंक्शन जो बार बार यूज करना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमसे क्या हो रहा है, हमको कैलकुलेशंस भी करनी है, टोटल भी कैलकुलेट करना है, परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है और फॉर्मेटिंग भी करनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैक्रो जो है एक ही वर्कशीट में हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर वो कर देते हैं, लेट प्ले ओवर लास्ट स्टेप। सपोज आई एम गोइंग टू राइट रोल नंबर, देन हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस। ओके 1 2 3 4। ओके, ये हो गया। अभी हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है मार्क्स बाद में डाल देते हैं, पहले मार्क्स डाल देते हैं 19 to 93, 94, 95, 95, 96, 90, 92, 93, 94। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरे मैक्रो जो है वो एक ही बार रिकॉर्ड करके लेते हैं। सो रिकॉर्ड मैक्रो, ओके ऑल कैलकुलेशन, मैक्रो का नाम जो होगा ऑल कैलकुलेशन, इट विल परफॉर्म formatting, then total calculation, then percentage calculation, of the data of the student or student data. ओके, फिर से हम लोगों ने क्या कर दिया, अंडरस्कोर जो है वो भूल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया है। पहले हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ तक हमको चाहिए, तो आई विल असाइन फर्स्टली ऑल बॉर्डर्स, थोड़ा सा फॉन्ट सभी का बढ़ा देते हैं 14, देन उसके बाद क्या कर दिया, बोल्ड, इसका बैकग्राउंड बदल दिया,
और यहाँ पर क्या आएगा, टोटल। टोटल का फॉन्ट थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर मैं क्या रखूंगी, परसेंटेज, लाइक ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं और यहाँ पर परसेंटेज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर हम लोग लिखते हैं टोटल सम ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। ये क्या है, स्टूडेंट वाइज टोटल है। इफ यू ऑब्जर्व इज दिस इज व्हाट, स्टूडेंट वाइज टोटल है, और आई कैन से दैट सब्जेक्ट वाइज टोटल। इसका थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट करना देते हैं। अभी मैं क्या कर देती हूँ, परसेंटेज की जगह यहाँ पर एक और कर देती हूँ, स्टूडेंट वाइज टोटल हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं, ये कॉलम जो है पूरा का पूरा यहाँ तक का कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बॉर्डर्स की जरूरत नहीं है मुझे, तो आई विल नॉट राइट इट लाइक दैट। ओके, ऑल बॉर्डर्स टोटल, ओके, एंड परसेंटेज। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इज टू सम ऑफ ऑल दिस, देन इज इक्वल्स टू, हम लोग आटा फिल भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल दिस। यहाँ पर जो है फॉर्मेटिंग रह गई थी। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रैक कर देते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, सम ऑफ C7 टू E7, राइट, सम ऑफ C8 टू E8, यस। अभी परसेंटेज जो है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इज इक्वल्स टू टोटल का कॉलम जो है उसको डिवाइडेड बाय 3, राइट। सो वैसे हम लोग क्या कर देंगे, बाकी के जो है वो टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करके लेंगे। थोड़ा सा उसको ठीक से कर लेते हैं। अभी हमारा क्या हो गया है, ठीक है, यहाँ पर का इंडेंटेशन जो है वो थोड़ा सा कम करके लेंगे हम लोग। ओके, सो लाइकवाइज वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स। देखिए, इफ यू अंडरस्टूड हियर व्हाट वी हैव डन, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है हम लोगों ने कर ली। ठीक है, और कुछ हम लोगों को फॉर्मेटिंग इसमें करनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। So likewise what we can do, we can have the calculations here. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग व्यू में जाएंगे। अभी कुछ बचा है क्या, आई थिंक सो नहीं है। सब्जेक्ट वाइज टोटल इज देयर, सो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। यप, सो वैसे ही हम लोग रहने देंगे और क्या करेंगे, इसको अभी स्टॉप कर देंगे, व्यू मैक्रोज स्टॉप रिकॉर्डिंग, एंड इसको हम लोग सेव कर देंगे, फाइल सेव एज डॉक्यूमेंट्स ऑल इन वन मैप, एन एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्क। ओके, सेव कर दिया मैंने इसको। नाउ आई विल यूज वन न्यू मैक्रो, that is all in one macro for my Excel sheet. Okay, roll number, Hindi, English and कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, इंग्लिश एंड साइंस। 1 2 then 3 and 4, 89 86 96 92 and 93, 98 95 96 96, then I have written 90 92 93 and 94. ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, व्यू, गो टू द मैक्रोज। व्यू मैक्रोज में हमको क्या है, ऑल इन वन, ऑल कैलकुलेशंस। आई विल ट्राई टू रन इट। ओके, इसमें कुछ एरर है, पहले वो देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पर जो है ये मैक्रो अपनी रन हो चुकी है। देखिए, बहुत सारी मैक्रो दैट टाइम ओपन होती है, सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। हम लोगों को क्या करना है, अभी बाकी के मैक्रोज जो है वो क्लोज कर देने हैं, सो दैट यू कैन हैव द बेटर आइडिया अबाउट इट। ओके, देखिए, अभी इस ऑल इन वन मैक्रो में हम लोगों ने क्या किया था, अभी यहाँ पर हम लोगों ने पूरी फॉर्मेटिंग कर ली, उसके बाद टोटल, परसेंटेज एंड सब्जेक्ट वाइज टोटल भी कैलकुलेशन कर दिया। ओके, सो इन दिस वे वी कैन इजीली यूज द मैक्रोज फॉर
the Excel sheets here. Okay, students, that's all for today. The book which I have referred for using the macros in the spreadsheet, that is Information Technology by Sumita. Okay, just tell me if you want more section on the Excel or any particular topic which is related to Excel, then please write in the comment box section so that I will know about it and we will have this special session on this. Okay, that's all for today's session, students. We will meet in the next lecture. Till then, bye. So at the end of the session, let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021. And its duration is up till the 30th of November 2020. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर CBSE क्लास 10, that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका maths फिजिक्स में clear हो जाएगा, science, then English and Hindi also. So likewise, we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT syllabus जो है वो कवर है. सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कोर्स. So you can subscribe for class 9 and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10 and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th. So I repeat again, that is if you are going to subscribe, आप लोग suppose 9 का subscription लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10th, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. सो 9th के बच्चे के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा. विथ 9 आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे. वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा. आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11th एंड 12th का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा. जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड get the subscription free for class 10th and 11th and 12th. For 9th and for 10th, you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So, अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी. ओके, तो प्लस इज व्हाट योर बेसिक प्लान टू गेट स्टार्ट एंड प्लस का जो एडवांस्ड है वो क्या है, आइकॉनिक. यस, यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर. यस, करेक्ट. We are having the personal mentors for the iconic subscription. देखिए पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं. प्लस में आपको मिलेंगे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. उसके बाद आपके लिए हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेंगी वीकली, मंथली. Then you are going to have the structure course and PDFs. Yes, the PDFs and course, that is notes, will be shared by the particular educator. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया, आइकॉनिक जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा. ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे. यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो. यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक. ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो. एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर PDFs आल्सो, दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर. ठीक है, बस आइकॉनिक्स में
और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा, यस दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल डाउट्स एंड टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स, दैट इज लाइव डाउट सोल्यूशन भी आपके लिए रहेगा। यस एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट का जो है आपके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहेगा, दैट इज पेरेंट कनेक्शन विल बी देयर। And then next will be you will have your own personal study planner, that will be the benefit of the iconic selection। and अगर आप लोग रेफरल कोड यूज करते हो तो you by using my referral code that is TDLA you are going to have the 10% off on that। so देखिए अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे that is how to use the plus सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए अभी जो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बंच। देखिए अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500 7,500 में। अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000 और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का। So these will be all the subscriptions for the plus. Okay. So likewise plus we are having iconic, that is it is advanced version of the plus subscription। देखिए अभी iconic में आपको क्या रहेगा, if you are going to for the 3 months subscription आपको पे करने पड़ेंगे 12,000। अब if you are going for 6 months subscription आपके लिए रहेंगे 17,000। Likewise, if you go for 12 months, you will have the 28,000। देखिए आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लगे उतना ही क्या रहेगा आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000। सो लाइकवाइज यू आर गोइंग टू हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर द 9, 10th, 11th, 12th प्लस एंड 9, 10th, 11th, 12th आइकॉनिक। सो उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500, देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K, दैट इज 10,000, फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000। सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए। सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 12 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं। सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे, इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 12,000 के लिए, देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए, देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000, then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000 and lastly 36 months for 66,000। So I would suggest if you are going for the 9th then you can have the benefit of both 9, 10th, 11th and 12th। अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10 का सब्सक्रिप्शन आप लोग जोगे 10th के स्टूडेंट से तो आपको 11th and 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा। So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount। So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July। Yes, we are going to have the Unacademy compact। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, we are going to have weekly scholarship tests for CBSE class 9th and 10th students। So specifically for 9th and 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सो ये जो एग्जाम रहेगी दैट इज दिस कॉम्बैक्ट विल बी अवेलेबल और इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ लैंग्वेज इट विल बी अवेलेबल ऑन द date of the 4th July at 11 AM। So you can enroll now in the link which is given in the description box। So अभी अनअकैडमी कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या 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 जीत सकते हो। ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस। फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग। सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore। यस, बिल्कुल सही। एंड
the exam time will be 45 minutes. आपकी जो exam time रहेगा वो रहेगा 45 minutes का. It will be having the 30 questions. देखिए 30 questions रहेंगे 45 minutes के लिए. Okay, and you can have this live test free. Okay, इसके लिए कोई आपको subscription नहीं करना है. You can have this free live test on your simple Android phone. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember, this test will be there for only for CBSE class 9, and just try to note down the date. That is what, 4th July at 11. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so, and yes, obviously you can download the Unacademy app, that is totally for free, and you can use its all features for free. And you please use my referral code, that is TD Love, if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture. Unacademy, let's crack it. Till then,